Shall we start our next chapter? Right, yes or no? स्टार्ट करें। कोई प्रॉब्लम है प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड? अगर है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। Yes, no problem. Related to chapter 14. Yes, first note down your syllabus. Your syllabus of PT1. आपके PT1 का सिलेबस नोट डाउन करिए पहले। PT1 मैथ्स का सिलेबस है आपका चैप्टर 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Written? हाँ, नोट कर लीजिए सिलेबस आपका। ओके, chapter number 6 is operation on algebraic expression. Operations on algebraic expression. It is our chapter. Algebraic expression we have studied in our previous class. Algebraic expression आपने पढ़ी थी in your 6th class. Yes, what is, बताइए, what is an algebraic expression? What is the definition? नहीं पढ़ी थी? Who said no? Yes, what is an algebraic expression? A combination of constant and variable connected by some or all the 4 fundamental operations is called an algebraic expression. Is it clear? याद आया कुछ? Algebraic expression constant और variable का combination है, और इन्हें किससे कनेक्ट किया जाता है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं?
प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो साइन होते हैं ये हमारे 4 फंडामेंटल साइन होते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जिनको फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्ट किया जाता है, वो क्या होती है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज कांस्टेंट? A symbol having a fixed numerical value is called a constant. जिसकी fixed numerical value होती है, constant की value change नहीं होती, उसकी fixed numerical value होगी। Clear? And what is variable? A symbol which take various numerical values is known as variables. जिसमें numerical value fixed नहीं होती है। कांस्टेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल में न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। क्लियर? यस, एनी क्वेरी? इशिका, राइट इन योर चैट बॉक्स। यस, स्पीक। Yes, Ishika. Any query? No, ma'am. Why you raise your hand? मैम आपने पूछा था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। Okay, okay, okay. हाँ तो बताओ, what is an algebraic expression? बताइए। Algebraic expression is an expression which is made up of from integers, constants, variables. Yes. Not integer, only constant and variable. Clear? Yes, ma'am. Yes. First, write down the definition of algebraic expression. Board is visible. बोर्ड इज विजिबल। जो मैंने लिखा है बोर्ड पे वो आपको दिखाई दे रहा है? बताइए मुझे, गिव मी रिस्पॉन्स। ओके, देन फर्स्ट राइट डाउन टुडेज डेट, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम। ओपन योर कॉपी। यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ algebraic expression? Algebraic expression, a combination of constants and variables connected by some or all four fundamental ऑपरेशंस। ब्रैकेट में नोट डाउन कर लेना, फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से हैं आपके।
प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके जो साइन होते हैं ये आपके क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस, इज कॉल्ड एन algebraic expressions. A combination of constant and variables connected by some or all four fundamental operations is called an algebraic expression. Clear? Note down in your copy. And what is constant? Constant क्या है? A symbol having a fixed numerical value, जिसकी fixed numerical value होती है, उसकी value change नहीं होगी. Constant की value fixed रहेगी और variable की value change होती है. रफ कर दो इसको. This definition is not in your book, so now note down. ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. It is a theory part of this chapter. और कंपल्सरी है इसको नोट करना. नेक्स्ट नोट करिए कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट? A symbol having a fixed numerical value is called a constant, जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. लिखते चलिए, इसको नोट डाउन करते चलिए हैंड टू हैंड. नेक्स्ट इज वेरिएबल. A symbol which takes various numerical values is known as variable. Written. यस, लिख लिया आप लोगों ने.
written? Yes. Example, see the example. 5 minus 3x plus 4x square y. It is an algebraic expression. ये एक algebraic expression है. इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है. कांस्टेंट क्या है? 5. 5 is a constant value. 5 की वैल्यू फिक्स रहेगी. And it is a variable part. यहाँ पे 3x, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पर. अगर आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो इस पूरे की वैल्यू चेंज होती जाएगी. इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, बट 5 की वैल्यू फिक्स है. तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्लियर? अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होती है? व्हाट इज टर्म? टर्म बताइए. The different part of the algebraic expression separate by the sign. इस algebraic expression में कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 और 3. 3 टर्म्स हैं. 1, 2 और 3. Different part of an algebraic expression separated by the sign is called the term of an algebraic expression. एग्जाम्पल नोट करिए ये, और इसकी डेफिनेशन भी लिखिए टर्म की. व्हाट इज टर्म? द डिफरेंट पार्ट of the algebraic expression separate by the sign plus or minus are called the term of the expression. यस, क्लियर हो गया? टर्म क्या है? The different part of the algebraic expression separate by the sign plus or minus are called the term of the expression. Yes, Divya, why you are roaming? Yes, written. लिखिए आप लोगों ने. ये जो एग्जाम्पल आपको दिया था, इस एग्जाम्पल में कितनी टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स इन द गिवन एग्जाम्पल? बताइए मुझे. यस, 3 टर्म. 1, 2 and 3. ये जस्ट रिवीजन था, हम 7th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं. Yes, written लिख लिया आप लोगों ने.
Yes. Then come to our exercise. And topic is addition of an algebraic expressions. Addition of an algebraic expression. See one example. Example number 1. Don't write in your copy. लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है इसको. Example is add 6a plus 8b minus 5c. ये एक एक्सप्रेशन हो गई आपकी. सेकंड एक्सप्रेशन है 2b plus c minus 4a. सेकंड एक्सप्रेशन हो गई आपकी. एंड थर्ड एक्सप्रेशन इज a minus 3b minus 2c. यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 1, 2 एंड 3. इसको आपको ऐड करना है. ऐड करने का क्या रूल था? लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं, तो आपको सबसे पहले लाइक टर्म्स को अरेंज करना है. हम इसको कौन से मेथड से करेंगे? कॉलम मेथड से. कॉलम मेथड से इसको ऐड करेंगे. ठीक है. फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 6a plus 8b minus 5c. लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिनके लिटरल फैक्टर सेम होते हैं. यहाँ पे 6a है माइनस 4a, ये दोनों लाइक टर्म होंगी कि नहीं होंगी? इनके लिटरल फैक्टर सेम है. इसमें भी a है, इसमें भी a है और थर्ड वाले में भी a वाले जो सारे आपके नंबर्स हैं, इनको आप एक तरफ, जो टर्म a वाली जो टर्म्स हैं उनको सबको एक तरफ अरेंज करोगे. b के नीचे सारी b वाली टर्म अरेंज होंगी और c के नीचे सारी c वाली टर्म्स अरेंज होंगी. क्लियर? 6a plus 8b minus 5c. ठीक है. सेकंड एक्सप्रेशन है आपकी 2b plus c minus 4a. अब a के नीचे a वाली टर्म आएगी, लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे. विद साइन लेकर आना है आपको. यहाँ ये हो गया आपका माइनस 4a. सेकंड टर्म है आपकी b प्लस 2b और थर्ड टर्म है आपकी c. ये हो जाएगी प्लस c. क्लियर? थर्ड एक्सप्रेशन a माइनस 3b माइनस 2c. इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है. फर्स्ट टर्म है आपकी a वाली. यहाँ पे देखिए 6a इज पॉजिटिव एंड a इज पॉजिटिव. ये दोनों पॉजिटिव है और माइनस 4a नेगेटिव है. तो पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐड नहीं होंगे. पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए. आपको शो नहीं करना, डायरेक्ट करना है. 6a और a की वैल्यू कितनी होगी? 1a.
6a प्लस 1a कितना हो गया 7a और 7a माइनस 4a कितना हो गया 3a। क्लियर। अब यहां पर आ जाइए सेकेंड टर्म पर प्लस 8b प्लस 2b बोथ आर पॉजिटिव तो 8 प्लस 2 10b और 10b माइनस 3b प्लस 7b। नेक्स्ट माइनस माइनस वाली टर्म देखिए माइनस 5c माइनस 2c दोनों ऐड हो जाएंगी ये हो गया माइनस 7c और माइनस 7c प्लस c कितना हो गया माइनस 6c। तो ये हो गया आपका आंसर। यस गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। इट इज क्लियर क्लियर नॉट हेलो गुड मॉर्निंग मैम। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मैम। क्लियर बताइए मुझे इट इज क्लियर और नॉट। हाउ वी एड द algebraic expression clear? Yes, good. Then come to our exercise. Come to our exercise. Exercise 6a. Exercise 6a. Question number 2. Question number 2 write down in your copy. Question number 2 लिख लीजिए। And your question is 7x minus 3x five x माइनस x और माइनस 2x आपको इसको ऐड करना है। अब यहाँ देखिए सारी x वाली टर्म है तो ये सारी तो लाइक टर्म्स ही हैं तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। अरेंज कर लीजिए इसको कॉलम मेथड में। सेवन एक्स माइनस 3x then 5x then minus x and minus 2x। ठीक है ऐड करिए पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर है आपका 7 5 7 प्लस 5 कितना हो गया 7 प्लस 5 12x। ठीक है यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका प्लस 12x। नेगेटिव नंबर्स देखिए 3x 2x और माइनस 1x तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2 5 और 1 6 माइनस 6x। क्लियर। अब प्लस 12x माइनस 6x व्हाट इज द आंसर प्लस 6x। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6x। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है
ये तो ओरली हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। Yes, done. Then note down next question, question number 5. Question number 5 and do yourself. Question number 5 note कर लीजिए. After question number 2, note down question number 5. Question number 5 is (6ax minus 2by plus 3cz). फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड है आपका 6by minus 11ax minus cz, and last expression is 10 cz minus 2ax और minus 3by. Arrange these expression according to like terms. फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपकी 6ax minus 2by plus 3cz. अब ax के नीचे ax वाली टर्म्स, by के नीचे by वाली टर्म्स और cz के नीचे cz वाली टर्म्स, इस तरीके से आपको अरेंज करना है. फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया आपने, सेकंड देखिए, सेकंड है आपका 6by, तो by के नीचे by आएगा, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो ये हो गया आपका प्लस 6by. नेक्स्ट माइनस 11ax माइनस 11ax माइनस cz. थर्ड एक्सप्रेशन 10cz, cz के नीचे cz पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका प्लस 10cz माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 3by. अब इसको ऐड कर लीजिए, -11 -2 कितना हो गया, -13ax और -13ax प्लस 6ax. 13 - 7 करिए, सॉरी 6 7 और नेगेटिव नंबर बड़ा है -13, तो ये हो गया आपका -7ax. देन -3by और -2by -5by और प्लस 6by, तो ये है आपका प्लस by. नेक्स्ट इज 10cz और 3cz दोनों पॉजिटिव है, तो 10 + 3 13 और 13 - 1
plus 12CZ. It is the answer. Yes, clear or not? बस क्या करना है आपको, लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ऐड कर लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव, और दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए जो हम इंटीजर में करते थे। बस यहाँ पे आपको लाइक टर्म का ध्यान रखना है। यस क्लियर? यस क्लियर और नॉट? क्लियर? गुड। Now I am going to share my screen. Yes, today's work, PDF of today's work. As it is, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। जिसने भी लेट क्लास ज्वाइन करी थी, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। And your homework is question number 4, 6 and 8. Homework is 4, 6 and 8. Yes, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.